Another question is there. क्या पूछ रहा है? In a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of a recessive allele for a certain hereditary trait is 0.20. उसने क्या कहा? The frequency of recessive allele. Frequency of recessive allele क्या दिया? 0.20. Frequency of recessive. The frequency of a recessive allele for a certain hereditary trait is 0.20. What percentage of the individual in the next generation should be expected to show the dominant trait? Dominant trait की frequency बताओ. वो पूछ रहा है, Q दे दिया है तो P पूछ रहा है. Clear? वो कह रहा है in a population 0.2 is the frequency of recessive one. ठीक है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट. अब इस तरह के क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं? देखिए इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्या आया? अरे सर क्यू दिया है तो पी आपका क्या होगा? 0.8. नहीं, उसने कहा इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट बताइए. आप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई होमोजाइगस की बात नहीं हो रही है. वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट. तो आप जैसे एक नॉर्मल सी बात समझेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. Frequency of recessive you know, then the frequency of dominant they all are or not? We are not discussing, hey, we are not discussing about the frequency of homozygous dominant. We are just talking about the frequency of dominant. Frequency of dominant. They all are tall, they all are dominant. This is recessive. So the given value is recessive की value है. हमें लाना है dominant की. Means to say there is a need to calculate the frequency of homozygous and frequency of heterozygous. Both will come under this. Clear? So that's why there is a need to give attention in such types of questions. You have to first find what they are asking. It's not like the P plus Q equal to 1. Sir, Q is given तो 0.8. इतना ही सरल होता, then why they should ask? Everyone can do that. Then analogy, now listen. So on the basis of this, means to say there is a need to find frequency of homozygous dominant and frequency of heterozygous dominant. दोनों को you can add, then that will be the frequency of dominant in this question. Okay, so frequency of अगर 0.2 is there, means to say P क्या हो जाएगा? 0.8. This is the now you can find कि P will be 0.8. Done or not जी? ठीक है, ये 0.8 हो गया. And what is 2PQ? अब हम इतनी सारी चीजें फाइंड कर रहे हैं. हम P निकालें, हम 2PQ निकालें. बेटर ये नहीं है कि जो दिया है उसको हम टोटल में से माइनस कर दें. आप समझे बात मैंने क्या कहा? They have given the frequency of recessive one. They are asking the frequency of dominant one. ठीक है, frequency of recessive 0.2 है. So homozygous recessive which will appear in population क्या होगा? Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.2 का स्क्वायर मीन 0.19 by 0.04. Done or not जी? So what the percentage? 4%. 4% peoples in a populations will be homozygous recessive. So remaining 96% कौन होंगे? Dominant. How easy it is. There is no need to calculate homozygous dominant. There is no need to calculate आपका heterozygous. Clear? बस इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से. क्या दे रहा है वो? कि in a population the frequency of recessive trait, the frequency of recessive trait in a population क्या है? 0.2. Find out the frequency of dominant. Frequency of recessive जब दे रहा है 0.2, तो हम पहले क्या निकालते हैं? इसका होमोजाइगस रेसिसिव जो पॉपुलेशन में है, Q स्क्वायर हो जाएगा 0.04. मींस परसेंट की बात करें तो 4% पॉपुलेशंस आर फ्रॉम होमोजाइगस रेसिसिव. मींस टू से रेसिसिव इंडिविजुअल्स हाउ मेनी आर देयर? 4%. सो रिमेनिंग कितने बचे? बचे आपके 96%. सो 96% आर फ्रॉम डोमिनेंट. डोमिनेंट है उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट भी होंगे एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आल्सो विल बी देयर. क्लियर और नॉट? इतनी बात है, देखो इजी है.
ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस करवाया सो दैट यू विल कम टू नो कि P प्लस Q अकेला नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट अदर थिंग्स आल्सो। गेटिंग और नॉट जी, ठीक है। नाउ लिसन, सिर्फ हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल ऑलरेडी वर्किंग, सिर्फ ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखेंगे। एंड द क्वेश्चन इज देयर, ठीक, in a random mating population, in a random mating population, frequency of disease causing a recessive allele is, frequency of disease causing a recessive allele is 80%. Disease causing a recessive allele is 80%. What would be the frequency of carrier individual in a population? Carrier individual means क्या पूछ रहा है? 2PQ they are asking. Okay? Getting or not? What they are saying? In a random mating population, frequency of disease causing recessive allele is 80%. Find out the frequency of heterozygous. Find out the frequency of carrier individual. Carrier निकालना, अब the 80%. 80% A है, तो A recessive है means Q हुआ कि नहीं? तो अगर P प्लस Q इक्वल टू 1, Q कितना है 80%, इसको क्या लिख दूं मैं 0.8, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P 0.2, डन और नॉट, देयर इज नीड टू कैलकुलेट 2PQ, सो 2 into P कितना है बेटा आपके पास 0.2 into Q कितना है 0.8, so 8 to 16 to 32, getting or not? तो 0.32, this is the frequency of heterozygous 32%. 32% जो इंडिविजुअल्स होंगे they are carrier. Clear or not? देखो कितना इजी हुआ, ठीक, और की फ्रीक्वेंसी दी है and that frequency easily we can calculate. Done or not जी, बता कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ना? ठीक, ऐसे में निकालना है। ओके, ठीक, तो ये हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल के बेसिस पर क्वेश्चंस थे, इतने सारे आपने लगाए, और लगाए और लगाओ, चलिए मजा आ रहा था, लगाते जाइए, अपना क्या है। चलिए देखिए, बात हो रही है आपका ऐसा क्वेश्चंस की, देखें इसे, देखिए बात करें बेटा, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.7, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील 0.7, क्लियर। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप, इस चीज को समझे, रेसेसिव फिनोटाइप। तो रेसेसिव फिनोटाइप they are not asking Q, they are asking Q square, they are asking Q square, clear or not? They are not asking about Q, they are asking about Q square, क्योंकि frequency of recessive phenotype they are asking. P you are knowing, ठीक है, as we all have information about P plus Q equal to 1. What is P value? 0.7. What is Q? So it will be 0.3 equal to 1, and they are asking about Q square, so Q equal to 0.3, तो Q square क्या हो जाएगा बेटा 0.09, means 9% individual, clear or not? You have to check this, आपको सिर्फ ये चीज फाइंड करनी है कि what they are asking about the frequency of recessive allele, or they are asking about the frequency of recessive phenotype. If recessive phenotype they are talking, आप समझिएगा कि हमें Q स्क्वायर की बात करना है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीन पूछ रहा है, क्यों की बात करनी है, क्लियर। तो उन्होंने दिया था द डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0.7, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप, रेसेसिव फिनोटाइप, P 0.7 तो 0.3, 0.3 का स्क्वायर, डन, क्लियर और नॉट, क्लियर ना भाई? ओके, नाउ सो नाउ वी आर talking about some problems, है ना? What are the problems are given in module? तो बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है, शानदार प्रॉब्लम्स हैं,
कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर गिवन इन मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट वन. ओके, सो वन बाय वन एक एक करके बात करते हैं हम उसकी. जस्ट सी, चलिए एक एक करके सारे फॉर्म्स की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग. ओके, सबसे पहले एक फॉर्म्स दिया हुआ जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, सारा भी उनके एप्लीकेशंस, व्हाट आर द ट्रिक्स वी डिस्कस, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर एप्लीकेशन नाउ. ओके, नाउ लिसन. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ये रहा है across between capital A small a capital B across between capital A small a capital B and small a and capital B they yield a genotypic ratio of. क्वेश्चन दिया है across between, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, across between capital A small a capital B and small a capital B yield a genotypic ratio of. क्या रेशियो देगा? yield a genotypic ratio of. ठीक है, किस तरह का रेशियो आएगा इसका बताया जरा. देखो किस तरह से मैं क्वेश्चन लगाने हैं, एक नॉर्मल वे पॉलिटिक्स वगैरह इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत इजी वे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, इसको आप चेक करें क्या रेशियो आना चाहिए. जरा देखें, ए कैपिटल ए स्मॉल ए देखो हेटेरो जाएगा का होमो जाएगा रेसेसिव. कौन सा क्रॉस हुआ है? टेस्ट क्रॉस और नॉट. कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए इज अ टेस्ट क्रॉस और नॉट. तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 1:1. इज इट नॉट? व्हाट आई टोल्ड, हेटेरो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करवाया होमो जाएगा रेसेसिव से, तो इट्स अ मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1. ठीक है, यानी रेशियो क्या आना चाहिए इसका? 1:1. और ये 1:1 इंडिविजुअल कैसे आएंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब कैपिटल ए एंड स्मॉल ए डन और नॉट जी. ये ठीक है, तो कैपिटल 1:1 क्रॉस. कैपिटल बी बताइए, कैपिटल बी का क्रॉस आएगा, देन ऑल इंडिविजुअल विल बी कैपिटल बी और नॉट, यानी सारे के सारे एक से आएंगे तो 4 आउट ऑफ 4. ठीक, ऑल आर सेम, तो ये 4 आउट ऑफ 4 ऑल विल बी सेम और नॉट. चारों के चारों आपके कैसे होंगे? इस तरह से. बात क्लियर? ऑल 4 विल बी कैपिटल बी. तो इन सब के साथ क्या लिख दें आप? कैपिटल बी और यहां भी क्या लिख दें? कैपिटल बी. डन और नॉट, इसका आप क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 4 1 जा 4, तब भी 1:1, यानी ये जो इंडिविजुअल आए कैसे आए? 1:1. क्लियर और नॉट? देखो कितना इजी था. उसे पूछा इनका क्रॉस करवाइए, क्या क्रॉस दिया है? क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी yield a genotypic ratio. इनका जीनोटिपिक रेशियो, तो मैंने क्या किया, ये जो दो दिख रहे हैं बेटा, इनका तो कोई रेशियो है ही नहीं. कैपिटल बी बोथ आर सेम, मींस टू दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल. इनका कोई रोल है ही नहीं. ये तो कैपिटल बी हर जगह दिखेगा. बट व्हाट अबाउट दिस? कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉल ए दिस इज मोनो. ये कैसा हुआ? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और नॉट. और टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:1. आप लिख दिया 1:1. 1:1 कैसा आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए. ओके, ये हमने लिख दिया. कैपिटल बी ऑल विल बी सेम, तो 4 आउट ऑफ 4 सेम. हमने इसका क्रॉस करवाएंगे तो 4:4 और ये इसमें लिख दिया है. यानी रेशियो क्या है आपका? आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया 1:1. कैसा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी. क्लियर नॉट? ऐसे करने में सारे क्वेश्चंस, इट्स वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.